इरम, आपको मेरी आवाज आ रही है? कैन यू हेयर मी? ओके, आई थिंक देयर इज सम इशू विद द इंटरनेट. ऑल राइट. ओके. कल मैंने एक टास्क असाइन किया था. व्हाट वाज द टास्क, इरम? कैन यू टेल मी? हेलो. हेलो. इरम, आपकी आवाज मुझे आ रही है, आप बात नहीं कर रहे हो. लाइक माइक की आवाज आ रही है मुझे. योर माइक इज ओपन. कैन यू प्लीज टॉक टू मी? हेलो। यस. कोई क्वेश्चन पूछा था आपसे मैंने कि आपको अपनी रूटीन में क्या चीज पर्टिकुलरली बहुत पसंद है. व्हाट इज द बेस्ट थिंग अबाउट योर डेली रूटीन? समथिंग एनीथिंग आई जस्ट वांट कि उसको सही करना, सेट करना। फॉर एग्जाम्पल. समथिंग which is very dusty and messy, so I just used to clean it daily, any portion, and I used to read a book as well. सो यू टॉकिंग अबाउट द पास्ट हैबिट. अपनी कोई पुरानी आदत के बारे में बात कर रही हैं आप? जी। मैंने कहा आप यूज टू इस्तेमाल करें ना. आई यूज टू क्लीन द थिंग्स. सो दिस इज पास्ट टेंस. यू आर टॉकिंग अबाउट योर पास्ट हैबिट और यू आर टॉकिंग अबाउट योर हैबिट दैट यू स्टिल हैव? I still have. Okay, so you can say that I like cleaning and I like putting things in order, right? Used to is used in past tense. Okay. 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 Right. Okay. Tell me one thing that you want to change about your daily routine. I just want to wake up early in the morning, like At at what time do you wake up usually? today I 9:30 or 10. I want to wake up early in the morning. At what After time Fajr, you? I don't want to sleep, but it's my habit Okay. that I want to sleep. So yeah. Okay. 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 Perfect. Thank you. That is a good thing to change if you change it. Right. Thank you so much. Okay. Assalamu alaikum, Mehak. How are you? Walaikum assalam, ma'am. I am fine. What about you? I'm good. Thank you. How was your day? My day was very nice. Oh, very good. What did you do that made your day very nice? I want to go for shopping. That made my You day. went you went for shopping. Okay, 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 okay. So, what special thing did you buy? Did you buy anything Mm, special? No, ma'am, nothing special. Yeah, because shopping itself is very interesting for women. Right, okay. Okay, tell me, Mehak, one thing about your daily routine that you like and one thing that you want to change or you dislike. Ma'am, I don't like my that routine that I um, usually I woke up at 11 I p.m. or wake up. 12 p.m. But I Okay. I wake up or woke up. वोक अप तो पास्ट की बात है ना. आप अपनी अभी हैबिट बता रही है ना जो आपकी रोज की है. अच्छा तो वेकअप जी. आएगा. तो I wake up at 1 or 2 p.m. but I want to change it. I want to an early bird. To be an You early want to bird. be very good. Okay. So at what time you want to wake up? I think if I wake up, I want to wake up at 10 a.m. Okay, okay, okay. Right, okay. And tell me the good thing about your daily routine that you really like. Ma'am, I think good routine is that I offer namaz regularly. I like it. That's very good. That's very, very good. Okay. Right. So thank you, Mehak. There is a picture on the screen. I hope you people can see it. So I would ask, Mehak, I would ask you, I gave you a task yesterday. First of all, tell me what was the task and then you can do it. मैम आपने टास्क दिया था कि 4 लाइन का पैराग्राफ बनाना था. Hmm. हाँ.
ठीक है। कोई नेगेटिव तो जी। एक्चुअली मैं जरा बिजी थी तो मैं वैसे तो बना नहीं पाई, लेकिन अभी जो मैं बनाती हूँ, लेकिन आप देखिए कोई मिस्टेक हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। कोई बात नहीं, बनाए बनाए। जी मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ। टेल मी अ पर्सन इन योर लाइफ, आप नाम बताएं या ना बताएं, रिलेशनशिप बताएं या ना बताएं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन जी। कोई भी आप किसी भी इंसान को पिक करके, इमेजिन करके आप बताएं कि उनके अंदर इनमें से कौन सी नेगेटिव क्वालिटी है। आपका उस नेगेटिव क्वालिटी की वजह से आपकी लाइफ पर या कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ आपके साथ, और आपको क्यों लगता है कि वो मैम इंसान ऐसा। हम्म। आई थिंक दैट वन पर्सन इज हिडन competitor in my life. ओके। एंड हाउ डू Mm. यू व्हाई डू She यू always थिंक दैट comp पर्सन। या। ma'am, I think she always competition and always think that I'm better than her. Okay. So you think she's a competitor? Okay. Hidden competitor. Okay. Yes, Have you competitor. ever had a bad experience due to this habit of her? No, no, ma'am. Actually, she is my sister-in-law, Okay. and and she and she never gets married. तभी मैंने कहा था कि रिलेशनशिप नहीं बताना, क्योंकि पता ही होता है इसका पति की लाइफ में कौन सा नहीं। हाँ, नहीं तो अभी ना मेरी भी शादी नहीं हुई और उनकी भी शादी नहीं हुई, तो वो मेरी जिठानी आपकी नहीं, सिस्टर इन लॉ देवरानी बनेगी। कैसी है? हाँ, तो अच्छा, मंगनी हुई सिस्टर। हुई है। हाँ जी, अच्छा अच्छा मंगनी के बाद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हाउ डिड पहले यू मेरी फाइंड मंगनी आउट? हुई है, अब उनकी मंगनी हुई है, तो वो हर चीज में ना कंपटीशन करती हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ। ओके। तो और कोई एनी वन लाइक, रिलेशनशिप्स तो अंडरस्टूड ही होते हैं। कोई ऐसा कभी आपका एक्सपीरियंस हुआ हो, वो मेरे साथ शेयर करें। किसी की नेगेटिव क्वालिटी की वजह से आपके साथ कभी समथिंग दैट had a negative impact on your life, or a bad experience that you have had due to someone's negative personality trait. नो नो मैम, ऐसा तो कभी कुछ नहीं हुआ। But you are doing a business, right? आप बिजनेस करते हो ना? जी जी। हम्म। तो कभी नहीं ऐसा हुआ कि किसी कस्टमर की किसी पर्सनालिटी ट्रेट की वजह से आपको प्रॉब्लम आई हो, या यस कुछ मैम, भी एक ऐसा? दफा हुआ था वो। उस बात इंग्लिश ने में ना मुझे इंग्लिश में। बहुत। हाँ। हाँ हाँ। वंस वंस टाइम शी वंस टाइम देयर इज वंस, अच्छा। वंस टाइम अच्छा। नहीं, वंस, सिर्फ वंस, हाँ। वंस वंस देयर इज होगा, बॉस होगा। पास्ट की बात हो रही है या प्रेजेंट की बात हाँ, हो रही है? नहीं बॉस होगा। हम्म, हम्म, There was a customer. She हम्म। talks like she talks to me, and her उनकी बातों ने मेरे दिल को बहुत दुखाया। Okay, she was hurting you. Why did she हाँ। hurt you? Like how? Uh, she says that you are cheap and your business are cheap. Uh, you provide cheap things. लेकिन उन्होंने कुछ बाय भी नहीं किया था, उसके बाद भी उन्होंने इतना कुछ कहा, तो वो बात मेरे लिए बहुत दुखी है और अभी तक मेरे दिल को दुखाती है। ये ऑनलाइन हुआ था आपके साथ या मतलब इन पर्सन नहीं हुआ नहीं, था? ऑनलाइन ऑनलाइन हुआ था। हाँ, ऑनलाइन पीपल आर वेरी वेरी एग्रेसिव एंड वर्बली अब्यूसिव, क्योंकि उनके पास मौका होता है ना, सामने से नजर जी। नहीं आ रहे होते इसलिए। यस, आई अंडरस्टैंड। ओके, सॉरी टू हियर दैट। थैंक यू महक। आई विल कम बैक टू यू। ओके। ओके। यस इरम, टेल मी, tell me a person in जी। your life that that who have these, any of these personality traits, negative personality traits. If you have had any bad experience with that person, you can tell me, and tell me why do you think that person has that quality, that negative personality trait. Yes, one person is my mood attacker, and Hmm. she's in my relative. Because Okay. in Dawat, everyone praised my dance, but Hmm. one of my relatives said to my face, मतलब मेरे मुंह पे उन्होंने बोला, it doesn't look good at all. The clothes aren't nice, and who wear this orange color? So it hit very bad, and a pretty good mood gets spoiled.
So I think she's a more attacker, and yeah. Okay. Right. If you have to pick one negative personality trait that you think you have, if like we always think we do not have anything negative in ourselves, but if you have to pick any quality from these about yourself, do you think you have any of these personality traits? Um, Let me think. I think emotional manipulator. Oh, right. So why do you think you are an emotional manipulator? Sometimes I don't want to share my feelings with someone else. That's why I change my twist my feelings, that I don't want Yes. that someone Sorry. should also know my feelings. Could you please repeat it? G, दोबारा बताइएगा आवाज शायद थोड़ी ब्रेक हो गई थी. I think I'm an emotional manipulator because I don't want that someone should also know my feeling, that what I'm feeling. So that's why I twist my feelings. Okay, you try. You think it is to respect people's feelings when you just manipulate them emotionally? Hmm? आप एक दफा बता सकते हैं कि इमोशनल मैनिपुलेटर वही है जो मैं समझ रही हूँ? नहीं, वो नहीं है, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ. इमोशनल मैनिपुलेटर वो इंसान होता है जो अ, मतलब फीलिंग्स को ट्विस्ट कर लेता है. अगर अंदर से कोई दुख लग रहा है तो बाहर से खुश होने की कोशिश करता है, या दूसरों की फीलिंग्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है. अगर कोई हंस रहा है तो वो कहता है कि नहीं नहीं, ये अंदर से तो बड़ा दुखी है लेकिन ऊपर से मतलब हंसने की एक्टिंग कर रहा है. इस तरह के बाज लोग होते हैं जिनको इमोशनली दूसरों को मैनिपुलेट करने की आदत होती है, या दूसरों की इमोशंस को ट्विस्ट करने की आदत होती है. कि अगर कोई बहुत ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल अल्लाह माफ करे, कोई डेथ हो जाती है तो कोई रो रहा है तो वो कहेगा जी ये जान की एक्टिंग कर रहा है. इस तरह के लोग होते हैं ना, इमोशंस को मैनिपुलेट करते हैं, दूसरों के इमोशंस को अपने फायदे के लिए या अपने उसके लिए, उस तरह वो चीज. ओके. सो यू डोंट थिंक यू आर एन इमोशनल मैनिपुलेटर? नो नो नो. Okay. Right, thank you. थैंक यू. Okay, so we are going to discuss this today. Okay. Phrasal verbs. First of all, tell me, I told you people what is a phrase. Phrase भी पता है सबको और verb भी पता है. मुझे कौन बताएगा कि phrase क्या होती है और verb क्या होता है अलग अलग? महक आप बताओ. What is a phrase and what is a verb? मैम फ्रेज जो होता है वो सिंपल होता है ना, सिंपल टेंस, नहीं सिंपल सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड वर्ब फ्रेज होता है. सब्जेक्ट और वर्ब तो पूरा एक सेंटेंस भी बन सकता है. इरम आप बताओ, फ्रेज क्या होता है? अच्छा, पहले महक आप बताओ वर्ब क्या होता है. चलो फ्रेज तो हो गया, वर्ब क्या होता है? अरे मैम वर्ब तो बड़ी कॉमन सी चीज है. जी मैम कॉमन चीज है लेकिन बताना नहीं आ रहा. कोई बात नहीं, बता दें, जो भी बताना रहे वो बता दें. इट्स ओके, आई डोंट माइंड. मैम कोई काम कर रहे हैं तो वो वर्ब है, कोई चीज रखी है तो वर्ब है. नहीं, कोई चीज रखी है वो वर्ब नहीं है. अगर कोई काम हो रहा है या कोई काम कर रहा है वो वर्ब है. कर रहे हैं वो वर्ब है जी. ठीक है. अच्छा, नहीं अगर इरम देखिए आप टेबल के नीचे कुछ रखा है तो वो वर्ब नहीं होगा. नहीं नहीं, वो तो उसकी preposition होगी. वो हाँ अंडर द प्रीपोजिशन. टेबल है ना, तो उसकी वो दैट इज preposition. जी जी अंडर इज अ जी जी. preposition. जो नाउन की preposition, जो नाउन की पोजीशन बताए ना, कि नाउन कहाँ वो है, ऊपर है, जी 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 टेबल जी. के ऊपर है कोई कैट, या टेबल के नीचे, तो दैट इज preposition. राइट, ओके. ठीक है. इरम इट्स योर टर्न. व्हाट इज अ फ्रेज? ये बाय द वे स्पेलिंग मिस्टेक है. PHRASAL होता है फ्रेजर. यस इरम, व्हाट इज अ फ्रेज? व्हाट इज अ फ्रेज? फ्रेज का मुझे नहीं पता. मैंने पढ़ा था लेकिन आई फॉरगॉट इट. शाबाश, वेरी गुड. वेरी गुड. अच्छा, phrase is a part of sentence that is basically phrase is the smallest part of sentence.
जुमले का वो हिस्सा जिसका अपना कोई मतलब नहीं होता, लेकिन फ्रेजेस मिलकर एक सेंटेंस बनाते हैं। समझे कि जैसे बिल्डिंग खड़ी करते हैं और बिल्डिंग में ब्लॉक्स होते हैं ना, या ब्रिक्स होती हैं। वो ब्रिक्स जो होती हैं जो बिल्डिंग को बनाती हैं, उनको हम लोग सेंटेंस के फॉर्म में जो सेंटेंस को बनाते हैं, उन ब्रिक्स को हम लोग फ्रेजेस कहते हैं। ठीक है। फ्रेज में दो वर्ड्स होते हैं, तीन भी हो सकते हैं, लेकिन फ्रेज मिल के सेंटेंस बनाती है। फ्रेज का अपना कोई मीनिंग नहीं होता। ठीक है। दैट इज अ फ्रेजल वर्ब, फ्रेज। एंड फ्रेजल वर्ब्स आर बेसिकली दोज पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, जुमले का वो सबसे छोटा हिस्सा जिसके अंदर वर्ब एडेड हो, उसको फ्रेजल वर्ब बोलते हैं, यानी कि वर्ब वाली फ्रेज। ठीक है। अब ये जरूरी नहीं होता कि फ्रेज में वर्ब्स ही हो। ये बेसिकली उर्दू में अगर कहा जाए ना, तो ये मुहावराती जुबान के कॉन्टेक्स्ट में आता है। मुहावरा या मुहावराती बात को हम लोग फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। ठीक है। अच्छा जी, 1 मिनट। कम अबाउट, ये एक फ्रेज। अब कम से रिलेटेड मैं आपको फ्रेजल वर्ब्स बताने लगी हूँ। कम अबाउट, किसी चीज का होना या किसी चीज का मतलब अकर करना, किसी चीज का हो जाना या होना, उसको हम लोग कहते हैं कम अबाउट। फॉर एग्जाम्पल, कैन यू टेल मी हाउ द एक्सीडेंट कम अबाउट? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एक्सीडेंट कैसे हुआ? तो यहाँ पे हम लोग वैसे वैसे भी कह सकते हैं, कैन यू टेल मी हाउ द एक्सीडेंट हैपेंड। लेकिन फ्रेजल वर्ब जो है, जैसे लैंग्वेज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, प्रोफेशनल लैंग्वेजेस के लिए हम लोग आइल्स की तैयारी करते हैं, डिफरेंट टेस्ट की तैयारी करते हैं, या आजकल मॉडर्न इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं, तो फ्रेजल वर्ब्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न इंग्लिश। ये सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। और जो ये टेस्ट होते हैं ना, आइल्स हो गया, पीटी हो गया, बाकी इनमें फ्रेजल वर्ब्स के अलग मार्क्स होते हैं। ठीक है। सो इट इज इंपॉर्टेंट इन जनरल कॉन्वर्सेशन, ऑल्सो इन मॉडर्न इंग्लिश कॉन्वर्सेशन, और टेस्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है। So phrasal verb number one is come about. Can you tell me how the accident come about? क्या मुझे बता सकते हैं कि एक्सीडेंट कैसे हुआ? Come across. Finally, usually by accident. Find usually by accident. कोई चीज आपको मिल जाए, मतलब हादसाती तौर पे मिल जाए आपको, आप ढूंढ ना रहे हो, लेकिन आपको ऐसे मिल जाए, आपके सामने आ जाए, उसको कहते हैं come across. In the meadow, he will come across a rare flower. कि ये एक मीडो होता है, जिस तरह ये पहाड़ी इलाके में जहाँ पे फूल वगैरह होते हैं ना, उस एरिया को मीडो कहते हैं। ठीक है। तो इन द मीडो ही विल कम अक्रॉस अ रेयर फ्लावर। तो ऐसी कि वो जो है ना मीडोज में, उसको कोई बड़ा नायाब फूल मिलेगा। ठीक है। कम अक्रॉस का मतलब ये कि वो ढूंढेगा नहीं, उसको मिल जाएगा एक्सीडेंटली या कोइंसिडेंटली। ठीक है। कम आफ्टर, परसू और फॉलो, किसी चीज का पीछा करना या किसी चीज को लेने की, ग्रैब करने की कोशिश करना, दैट मीन्स कम आफ्टर। डोंट ट्राई टू कम आफ्टर मी, कि मुझे मेरा पीछा करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली ये भी कह सकते हैं, डोंट ट्राई टू फॉलो मी, बट डोंट ट्राई टू कम आफ्टर मी। जैसे उर्दू में हम मुहावराती जबान यूज करके जरा थोड़ा प्रोफेशनल और पढ़े लिखे वाली एक फीलिंग आती है, उसी तरह इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब्स का भी वही रोल होता है। come away, become separated from something. The cakes have separated, the cakes have started to come away from the pan. Become separated from something, कि किसी चीज से अलग हो जाना, उसको हम कहते हैं come away. अब आप ये सोचते होंगे वो तो गो अवे होना चाहिए, लेकिन जैसे मुहावरों में चीजें, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ये ग्रामेटिकली तो रॉन्ग है, लेकिन क्योंकि ये मुहावरा है तो ये इसमें ग्रामर का रूल नहीं है। इसी तरह कम अवे इज अ व्हाट यू के से फ्रेजल वर्ब। कम अपार्ट, ब्रेक, सेपरेट, किसी चीज का टूट जाना या अलग हो जाना, उसको हम लोग कहते हैं कम अपार्ट। द कप जस्ट केम अपार्ट इन माई हैंड्स, कि कप मेरे हाथ में आते ही टूट गया। ठीक है। कम अराउंड, चेंज वंस माइंड, गिव हर टाइम एंड शी मे कम अराउंड एंड सी थिंग्स योर वे। किसी का जहन बदल जाना इज कम अराउंड, किसी का जहन बदल जाने को हम कहते हैं कम अराउंड। इसकी एग्जांपल ये है, गिव हर टाइम, उसको टाइम दो, एंड शी मे कम अराउंड एंड सी थिंग्स योर वे, वो शायद अपना जहन बदल ले और चीजों को तुम्हारी तरह देखना शुरू कर दे। कम अलोंग, कम अलोंग का मतलब होता है कि किसी को कंपनी देना, किसी के साथ चलना। आई लाइक यू टू कम अलोंग विद मी टू द ओपेरा, मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मेरे साथ ओपेरा में चलोगे। तो ये कम अलोंग। कम बैक, रिटर्न, आई लेफ्ट वर्क एंड केम बैक होम अर्ली, वापस आ जाना, ये तो सिंपल है, वापस आ जाने को कम बैक कहते हैं। ठीक है। आई लेफ्ट वर्क, मैंने काम की जगह छोड़ी, ऑफिस छोड़ा, और एंड केम बैक होम अर्ली, और घर जल्दी आ गया या आ गई। ठीक है।
किसी को समझ ना आई हो? इरम और महक जी जी मैम, समझ आ गई मुझे। आ गई? चलें, अभी आप ऐसा करें, कौन से काम का आप एक काम फ्रेज उठाएं और उसका कोई सेंटेंस बनाएं। जी मतलब मिस। इनमें से कोई भी एक फ्रेज जो आपको पसंद आई है ना, वो पिक करके जी। उसका आप सेंटेंस बनाओ। आई लेफ्ट माई होम एंड कम बैक टू माई वर्क। आई लेफ्ट माई होम एंड केम बैक। लेफ्ट पास्ट टेंस है ना? जी जी, कैम ठीक है, बैक टू केम माई। आए। हाँ, ठीक है। ओके इरम, यस इट इज योर टर्न नाउ। थैंक यू महक। Come after me if you want any help. ओके, कम आफ्टर मी इफ यू वांट एनी हेल्प। फाइन, वेरी गुड। ओके, अब मैं आप लोगों को देती हूँ। इरम, कम अक्रॉस का बनाइएगा या केम अक्रॉस, ये आपकी मर्जी। 1 minute. 2 मिनट ले लें, कोई बात नहीं। मैम तब तक मुझे भी बता दें, मैं भी सोच लूँ। हाँ हाँ, ताकि आप तैयारी कर लें। नहीं 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 नहीं, ये काम नहीं चलेंगे। जी इरम। इरम है हमारे साथ। जी इरम, काम अक्रॉस का बनाइएगा। आप सोच रही हूँ। सोच रही हो? चलो आप सोचो, फिर मुझे बताना। महक आपकी बारी, इट्स योर टर्न। काम अपार्ट। काम आई अपार्ट या वॉश केम I wash अपार्ट? the dishes and the dishes come apart from my hand. केम अपार्ट, क्योंकि वॉश्ड है पास्ट टेंस। नहीं केम वॉश अपार्ट। नहीं हो रहा है मैम, अभी हो रहा है। अच्छा, हो रहा है, वॉश है, अच्छा अच्छा। हाँ। आई वॉश द डिशेज एंड डिशेज कम अपार्ट इन माई हैंड। From in my hand. ओके ओके, थैंक यू। यस, गुड सेंटेंस। यस हिरम, सोच का सिलसिला कोई आगे बढ़ा? I came across my old diary. वेरी गुड। आई केम अक्रॉस माई ओल्ड डायरी, कि अचानक से आपको अपनी पुरानी डायरी मिल गई। वेरी गुड। ओके, अच्छा अब कम से रिलेटेड एक और मैं आपको देने लगी हूँ। सिंपल सी बात है, जब आपको किसी की बात समझ में ना आए ना, कि आपको अगले दूसरे इंसान ने क्या कहा है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम सुनने में गलती कर जाते हैं या हमें समझ नहीं आती कि क्या कहा इंसान ने, दूसरे इंसान ने, तो हम अक्सर कह देते हैं सॉरी। ठीक है, इनफॉर्मल गैदरिंग में या इनफॉर्मल सेटिंग में, जहाँ पे फ्रेंड्स बैठे हैं या आपस में फैमिली में हैं, या कोई और चिट चैट चल रही है, तो फिर आप कह सकते हो सॉरी। या पार्डन कहते हैं हम लोग जरा फॉर्मल तरीके से, जब फॉर्मल गैदरिंग में होते हैं तो हम कहते हैं पार्डन। जब हमें बात समझ में ना आए, जैसे अगर मैं मेरे से आप बात करेंगे, जाहिर है स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप इज फॉर्मल, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि मैंने क्या कहा है, तो यू से पार्डन, यू नॉट से सॉरी, राइट। और ये एग्जाम्स वगैरह होते हैं, इसमें भी यही होता है, स्पीकिंग टेस्ट में, कि हम लोग सॉरी नहीं कहते, वी से पार्डन। और पार्डन, उसके बाद अगली जो बात आपने कही ना, कि पार्डन का मतलब कि मुझे समझ में नहीं आया, या सॉरी का मतलब ये कि समझ में नहीं आया, फिर आप ये कहेंगे ना जबकि दोबारा रिपीट करो, तो कैन यू प्लीज रिपीट इट, ये थोड़ा सा ऑफ लगता है। उसकी जगह आप क्या कहेंगे? सॉरी कम अगेन, या पार्डन कम अगेन। कम अगेन का मतलब होता है कि रिपीट करें बात को। इसका मीनिंग ये देख सकते हैं हम, यूज टू आस्क समवन टू रिपीट समथिंग दैट यू हैव नॉट हर्ड और अंडरस्टूड। ये इनफॉर्मल सेटिंग में यूज होता है ज्यादातर। सॉरी के बाद ज्यादातर यूज होता है, लेकिन लोग पार्डन के बाद भी यूज कर लेते हैं। मगर सॉरी के बाद, यानी कि इनफॉर्मली जब बात हो रही है, तो उस सेटिंग में हम लोग कहते हैं कम अगेन। फॉर्मल सेटिंग में कुड यू प्लीज रिपीट इट इज फाइन,
लेकिन मुझे थोड़ा सा ऑफ लगता है, पार्डन कह देना काफी होता है, वो खुद ही समझ आ जाती है इंसान को कि बात बात को दोबारा रिपीट करना है। लेकिन अगर आपको आप ये कहना चाहते हैं कि रिपीट करो, तो सॉरी की बजाय आप ये भी कह सकते हैं कम अगेन। मतलब इनफॉर्मल सेटिंग में दोस्तों बैठे हैं या वैसे इनफॉर्मल कोई डिस्कशन हो रही है, तो बजाय सॉरी कहें आप कम अगेन भी कह सकते हैं। या आप थोड़ा और फॉर्मल करना चाहते हैं गुफ्तगू, तो आप कह सकते हैं कि सॉरी कम अगेन। ये बात कितने लोगों को समझ आई, कितने लोगों को समझ नहीं आई? ओके, ठीक है जी इरम। मीन्स हम सॉरी की जगह पार्डन यूज करेंगे, पार्डन कॉमा कम अगेन। नहीं, पार्डन के बाद कोशिश करें कम अगेन ना यूज करें। पार्डन आपने कहना था फॉर्मल सेटिंग में, बॉस बैठा हुआ है, टीचर बैठा हुआ है, कोई बड़ा बैठा हुआ है, आपको उसकी बात समझ नहीं आई तो आप कहेंगे पार्डन। लेकिन अगर आप इनफॉर्मल गैदरिंग में है ना, फ्रेंड्स में है या कोलीग्स में है या कहीं पर ऐसे हैं, वहां पर आपको बात समझ में नहीं आई तो आप सॉरी भी कह सकते हैं, कम अगेन भी कह सकते हैं, या दोनों भी कह सकते हैं, सॉरी कम अगेन, कि सॉरी मतलब बात समझ में नहीं आई, कम अगेन के इसको रिपीट करो बात को। ओके, ठीक है, गेट ओके। इट, थैंक यू। अच्छा जी, महक, जी मैम। क्विकली रिवाइज द ईडियम अभी तक जो मैंने आप लोगों को करवाए हैं। आज थर्ड वीक है हमारा। मैम जो अभी तक पढ़ाए हैं, राइट। मैम अंडर द वेदर, ये तो मुझे तरीके से याद आ गया है। और वंस इन द ब्लू मून, वेरी गुड। और ये कम अगेन, और कौन सा था? कल क्या करवाया था मैंने कल? कल तो इडियम नहीं हुआ था, हुआ था? जी हुआ था। हम्म, वो मुझे याद नहीं मैम, क्या हुआ था? चलो रिवाइज कर लेना, ठीक है। और कोई और बस यही वोकैबलरी हुआ है। वर्ड? अच्छा, और वोकैबलरी आपने अभी तक कौन सी सीखी, कौन से वर्ड्स आपको याद हैं या वो आपको कैब अच्छे लगे? जी, वो कैबरी, वो एक स्वाम्ड विथ वर्क, ये मुझे अच्छी लगी और मुझे याद भी हो गई है। और पीस ऑफ केक आपने पढ़ाया था कल। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, और वोकैबलरी के बारे में बता रही थी आप? जी, वो कैबरी, एक तो स्वाम्ड विथ वर्क ये था। फॉर्म्ड विद वर्ब, ठीक और है। और बहुत और बस बड़ी मैम चीज यही के याद बारे है। में, नहीं, बहुत बड़ी चीज के बारे में मैंने एक वर्ड बताया था। नहीं याद मैम। जाइगेंटिक, जाइगेंटिक। जाइगेंटिक, जी हाँ, राइट, जाइगेंटिक। हाँ जाइगेंटिक। याद आ अच्छा, आज मैं आप लोगों को एक और वर्ड, वोकैबलरी वर्ड देती हूँ। इससे पहले कि मैं इरम से भी पूछूं वोकैबलरी, इरम आपके पास लकीली 1-2 मिनट है, क्योंकि आज मैं वर्ड एक और देने लगी हूँ। उसके बाद मैं आपसे पूछती हूँ कि आपको कौन सा वर्ड याद है and जो आपको पसंद आया है अभी तक, जो आपने मेरे से सीखा है। ओके, ये वर्ड जरा थोड़ा सा गर्लिश, तो मैं नहीं कहूंगी, गर्लिश कोई वर्ड नहीं होता, गर्लिश नहीं है ये, लेकिन क्योंकि हमें घर के काम शाम होते हैं, तो इसलिए ये वर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं। सो दिस इज द वर्ड, इट इज प्रोनाउंस्ड एज इमैक्यूलेट। क्या इमैक्यूलेट वो चीज होती है जो बहुत साफ सुथरी, ऑर्गेनाइज्ड और स्पॉटलेस, के कोई निशान ना हो। शीशा है घर में, उसको हम साफ करते हैं तो हम कह सकते हैं इट इज इमैक्यूलेटली क्लीन, परफेक्टली क्लीन, नीट और टाइडी। द रूम इज इमैक्यूलेट, ठीक है। तो इमैक्यूलेट का मतलब होता है बहुत साफ सुथरा, टाइडी और ऑर्गेनाइज्ड होना, ठीक है। ओके, इरम मेक अ सेंटेंस ऑफ इमैक्यूलेट फर्स्ट। जी, आर यू देयर इरम? जी जी। जी जी, माय इमैक्यूलेट। माय बुक, ओके, जी जी, जी जी माय बताओ। बुक इज immaculately clean. नहीं, इमैक्यूलेट का मतलब ही क्लीन होता है, बस इमैक्यूलेट ठीक है। My bookshelf is always immaculate. वेरी गुड, माई बुक शेल्फ इज ऑलवेज इमैक्यूलेट, वेरी गुड। महक, इट इज योर टर्न। माय कबर्ड, माय कबर्ड इज इमेक्युलेट। माई कबर्ड इज इमैक्यूलेट, ओके।
राइट, थैंक यू महक। इरम, मुझे बताइएगा अभी तक जो आपने मेरे साथ वोकेबलरी की है, जो कुछ भी वर्ड्स लर्न किए, उनमें से कौन सा वर्ड आपको कैच किया है, उसका मीनिंग बताएं, उसका कोई सेंटेंस बनाएं। Swamped with work, ओके, under the weather. वो तो ईडीएम हो गया ना, वोकेबलरी। और उसके बाद I think I didn't take the class because ओके, I was under the weather. you were under the weather, okay. Can you make a sentence of swamped with work? ये नहीं होना चाहिए कि आई वॉज स्वॉम्प्ड विद वर्क टुडे। अपने बारे में नहीं, सेकंड पर्सन से सेंटेंस बनाए, थर्ड पर्सन से बनाए, आई डोंट माइंड। Okay, let me think. ओके, Yesterday, my grandmother was swamped with work. वेरी गुड। यस, इट इज योर टर्न, महक। I went to the shop and the teller was swamped with work. Swamped with work. स्वॉम्प्ड विद वर्क, वेरी गुड, ओके। अच्छा जी, आई एम गोइंग टू असाइन यू द होमवर्क नाउ। ओके, राइट। पहले हम पर्सनालिटी ट्रेट्स को देख रहे थे, पर्सनालिटी में क्या चीजें होती हैं, नेगेटिव पर्सनालिटी ट्रेट्स भी देखे हमने, आपको मैंने टास्क दिए, पॉजिटिव पर्सनालिटी ट्रेट्स भी काफी देखे, ठीक है। ये और बात है, आपने आज मुझे क्लास में उनमें से एक भी वर्ड नहीं बताया, ये आपको होना चाहिए याद, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इसमें से देखते हैं जो मैम, कम्युनिकेशन। पर्सनैलिटी जी, ट्रेट्स जो आपने कहे थे ना पहले पहले पॉजिटिव वाले, वो मुझे याद थे, आपने पूछी नहीं। तो बेटा वो वोकेबलरी ही है, सॉरी अगर आप मेरे से बड़े हो तो मेरे स्टूडेंट हो, ठीक है, तो वो वोकेबलरी में ही आते हैं मुझे वर्ड्स। अगर आप पूछती ना पर्सनैलिटी ट्रेट्स बताएं तो मैं आपको बता देती। मैं समझी वोकैबुलरी सिर्फ वो स्वाम्ड विद वर्क, ये शाबाश, वोकैबुलरी। शाबाश, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड गोइंग, वेरी गुड। यानी मैं पर्सनालिटी ट्रेट पर टाइम वेस्ट करती खाम खा, मैं तो अपनी तरफ से वोकेबलरी बिल्ड कर रही थी मैं वो कोई बात वोकैबुलरी नहीं, नहीं समझ रही थी। चलो चलो चलो, अभी बता दो, चलो अभी बता दो, मैम, कोई आपने ऐसी पहले पहली पर्सन। क्लास में बताए थे ऑप्टिमिस्ट, पेसिमिस्ट और मेंटोर, और उसके अलावा नाइट ऑल, नाइट नाइट ऑwl, आउल, आउल, नाइट आउल। आउल। और उसके बाद था अच्छा, सुबह हम्म, जल्दी उठने वाले को क्या कहते हैं? अ, अभी अभी मैंने याद किया था, मैं बताती हूँ आपको। अर्ली बर्ड, अर्ली बर्ड, अर्ली बर्ड। और उसके अर्ली बाद बर्ड, पार्टी एनिमल, पार्टी एनिमल, वेरी नो इट गुड, ऑल, और वेरी शो गुड, ऑफ, ये आपने वेरी बताए थे। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। अच्छा, आप बताओ, इरम, आपको पर्सनालिटी ट्रेट्स में से अगर आपको भी लगता है कि वो वोकेबलरी से हटके कोई चीज है, तो पर्सनालिटी ट्रेट में से कौन सी ट्रेट आपको याद हुई है और आपको अच्छी लगी है, या आपके जहन में है? कुछ होते हैं ना वर्ड्स हमें फौरन कैच करते हैं। जी इरम। अच्छा, शायद फिर नेटवर्क इशू है, ओके। अब हम लोग कम्युनिकेशन ट्रेड्स देखते हैं, कम्युनिकेशन जो हम लोग आइडियाज एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। और ये एक स्किल है, सॉफ्ट स्किल है, जिसको कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स, स्किल, ठीक है। कम्युनिकेशन में जहाँ पे आइडियाज एक्सचेंज किए जाते हैं, उसके कुछ ट्रेड्स हैं, मतलब उसकी कोई एलिमेंट्स हैं या अच्छी चीजें उसके बारे में, वो क्या है? आर्टिकुलेट, स्पीक्स क्लियरली। ऐसा इंसान जो बात क्लियरली करता हो, चीज को क्लियरली समझाता हो, दैट पर्सन इज कॉल्ड एन आर्टिकुलेट पर्सन। व्हाट हैपेंड? ओके। परसुएसिव, ऐसा इंसान जो दूसरे को कन्विंस कर सके, कायल कर सके, उसको बोलते हैं परसुएसिव। attentive, someone who listens to others carefully, that person is called attentive। ये सब कम्युनिकेशन के ट्रेड्स हैं। empathetic, understand feelings। एक होता है sympathetic, एक होता है empathetic। सिंपथी होती है कि अगर कोई रो रहा है, आप उसके पास जाके कहते हो कोई बात नहीं, ना रो, ऐसा हो जाता है, ये है सिंपथी, हमदर्दी दिखाना। एम्पथी है जब आप, कोई रो रहा है और आप उसके पास जाके कहें इट्स ओके, आई ऑल्सो फील बैड, और आप उसके साथ बैठकर रोए और उसकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करें, दैट इज एम्पथी, ठीक है। उसको दिलासा दें, एक तो वैसे ना कि आप हमदर्दी करें, एक होता है दिलासा देना, कंफर्टेबल करना, उनकी फीलिंग्स को समझना, दैट इज एम्पथी। तो एम्पथेटिक वो इंसान होता है जो हु अंडरस्टैंड द फीलिंग्स